Who's next? शिवानी जी अनम्यूट करिए. Yeah, hi, good evening. Hi, good evening, Shivani ji. So, Mira, sorry, I'll change my place because the question जिनके बारे में पूछना है, he's sitting All next of to a me. sudden, you know, Okay. she must have asked to unmute you. So that's why. Yes, yes, that's true. अच्छा, मेरा question मेरे husband के बारे में है, इसीलिए I had to change my place. So, मुझे Okay. उनका job का पूछना है कि job उनका कब तक लग जाएगा? अच्छा, अभी right he's now. jobless. Okay, okay. क्या वो अपना लाइन ऑफ वर्क चेंज करना चाहते हैं शिवानी जी? एक्चुअली वो लाइन ऑफ वर्क मजबूरी में चेंज करने का सोच रहे हैं क्योंकि उनको जिस लाइन में है तो वो उन्होंने सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट किया हुआ है लेकिन उस लाइन में उनको जॉब नहीं मिल रहा है. सो दैट्स द रीजन ही इज एक्सप्लोरिंग कि कहीं और या मिलेगा भी मोस्ट लाइकली डिफरेंट में ही मिलेगा. ओके, मोस्ट लाइकली. But he will actually be doing well there as per the cards because I've got 3 aces out of 6. So aces is a new beginning which is positive. So जो भी वो change करेंगे which is थोड़ा सा non-conventional उनके लिए जो हम बोले because he's been into something and now if he's going to some other place it is going to be good for him and it is going to be a good start in a way that will happen soon. बहुत जल्दी opportunity मिलने की possibility दिख रही है. Now right now he's struggling a lot with his you know जैसे होता है ना एक emotional मतलब जैसे खासकर 2 ऑप्शंस जैसे हम बोले ना 2 ऑप्शंस अगर हैं उसको आप फील्ड्स बोल सकते हो. फील्ड्स भी हो सकती है वो डिफरेंट या 2 डिफरेंट जॉब्स हो सकती हैं. So he's kind of struggling with his emotions between those two. जी, Is it so? Yes, it is. Perfectly He so. does share market. So It's trading, perfectly showing in the card because I of course had no clue. There is very specific of 2 things. As I said, it can be 2 jobs, and as I said, one more option can be like 2 different, you know, you can say different streams. So rightly you said that it's share market and share market only trading जो share trading है. So he उसमें has थोड़ा a keen interest. हाँ emotionally stuck है right now. वो उसको Because करियर बनाना चाह रहे हैं उसको. yes, he is trying since long. काफी टाइम से कर रहे हैं और जॉब अराउंड 3 years से नहीं है. So he is into this only. But वो ये है कि बहुत ज्यादा रिजल्ट्स उसके अभी तक आए नहीं हैं. So उसमें फ्यूचर है या नहीं, but he is trying अगर उसमें भी फ्यूचर हो तो. So if you can just check अगर उसमें फ्यूचर है तो. रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है ना, कार्ड्स में भी बता रहा है. रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, उतना सिक्योरिटी उस चीज के साथ नहीं है. वो बस स्ट्रेंथ उनको मिल रही है उसको करने के लिए. वैसे कर सकते हैं शिवानी जी बिकॉज ना थोड़ा लीप लग रहा है दैट ही गेट अ लिटिल लीप यू नो इन हिज maybe professional or you can say financial life and all that. If he is interested he can do that. थोड़ा risk factor है but वो strength ले आएंगे. He can actually, I think he's kind of a person who has strength, मतलब in the sense mentally. Yes. Is it so? Yeah, he is He's trying hard. mentally strong. Yeah. So this is something which is required, you know, in this kind of profession also. And as such, his cards are, because, you know, he is in my mind when I'm opening the cards, when I'm drawing the cards. So this strength thing is showing that he'll able to have that strength to manage that kind of work.
So yes, the risk factor he'll take care of. He will be doing good with that if he's Okay, free of that. that's really nice. Yeah, he should be Um, doing good. Great. Okay. Can I request for one more question about my business? Yeah, we can have a quick one so that we give Yes, so others also the opportunity. thank you so much. So I just want to know the future of my business. So it is doing very average right now. Okay. So will that flourish in future? What is the future of my business? When is your birthday, Shivani? 7th August 1979. 7th August. Are you somewhere involved globally, like India के बाहर कहीं involved है आप? आपका business? हाँ, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जिस बिजनेस में हूँ दैट इज ग्लोबली अवेलेबल. सो आई हैव टेकन अ फ्रेंचाइजी. सो या सो मेरा तो लिमिटेड अच्छा. जगह पे ही है, लेकिन स्टिल द बिजनेस इज द मेन मास्टर जो है वो ग्लोबली है. So it is very clearly showing that आपका business, of course मुझे नहीं पता है कि वैसे अब आपने बताया है तो it is जी. showing that global connection. और आपका question precisely था कि that अच्छा होगा कि नहीं होगा. बहुत अच्छा होगा. You will do good because the other cards are like really really very positive. So अच्छा जाएगा. Pentacle का card है. Pentacle is like one type of cards which shows money also. So yes, monetarily अच्छा करेगा आपका business आगे. थैंक यू. And you have divine blessing also. जैसे आपका business का जो concept है वो like somebody else is also involved into your work, or like you are a sole person who's doing it but you have involvement somewhere. कुछ ऐसा है? Can you just little explain about it? I'll tell you, majorly ये मेरा ही है, but my husband, since he doesn't have any job now right now, तो वो मेरे साथ कभी कभी होते हैं, but majorly I am the one. But yes, I am learning occult also, so I'm into astrology for few years now. और अभी थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट इस टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी में भी अभी अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है. Okay, So I'm just trying to explore कि क्या है ये वाली साइंस. एक्चुअली वही होता है ना, जैसे मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी हम जब वो कुछ करेंगे ना, मैं खुद भी कई बार I get stuck, so it is like a quick remedy you get from there. So it is actually very beautiful and I am really really inclined toward this, मतलब मेरा जो दिल है ना वो इसी में है, like with tarot cards, though I know the other things also, but I really enjoy doing it. So anyways, जैसे coming back to your question, मैंने दो लोगों का इसलिए पूछा कि जैसे अगर आपके हस्बैंड भी आपको अगर गाइड कर रहे हैं या आप डिस्कस कर रहे हो या जो भी आपकी फॉर योर वर्क पॉसिबिलिटीज फॉर फ्यूचर जो भी चीज आप करते हो, जस्ट बी लिटिल ट्रांसपेरेंट विद शेयरिंग. जैसे होता है ना, जैसे डोंट हाइड एनीथिंग. आप मतलब अगर आप नहीं करते तो अच्छा इधर हिम. सो इफ यू आर एक्चुअली कीपिंग इट ट्रांसपेरेंट, उसका ये होगा कि उससे आपको जैसे बहुत ना यू कैन से सॉल्यूशंस ज्यादा मिलेंगे how to go about it in future, and that will kind of be very very like positive for your work growth. तो कहीं होता है जैसे अभी तक सब ठीक है, आप ऑब्वियसली सब शेयर करते हैं and होना चाहिए वैसा, बट सपोज कल कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है यार ये उनको नहीं बताना है, आई मीन आई शुड नॉट बी टेलिंग हिम, इट्स ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. कभी कभी हमें लगता है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट यू डिस्कस, जस्ट थिंक अबाउट इट दैट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट वर्क ग्रोथ. कॉन्शियसली ये चीज सोच के आप डिस्कस करो. It will give you more solutions and more horizons, to go further and to like maybe grow in your work. All right. Okay. So that will be, I think, otherwise it's good. अच्छा है. अच्छा करोगे आप.
Yeah. थैंक यू सो मच। अभी तो थोड़ा स्ट्रगल है बट आई एम नहीं होपफुल। स्ट्रगल नहीं है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा स्ट्रगल। नहीं नहीं ज्यादा नहीं है मैम, बस वही हो रहा है कि बहुत एवरेज है, तो बस वो सब रेंट और उसमें सैलरी में चला जाता है। आई एम नॉट एबल टू टेक आउट एनीथिंग एट होम, बट आई एम नॉट पेइंग फ्रॉम माय पॉकेट देखो पॉकेट। मैं इसमें दैट्स द एक और, बेस्ट पार्ट। हाँ इसका मैं एक और भी कार्ड करती हूँ, बिकॉज जैसे आपने करेक्टली बोला, ये बात मेरे को कार्ड्स में भी दिख रहा है। कार्ड्स में वो स्टैग्नेंट वाला चीज दिख रहा है, यू नो दैट जी जी स्टैग्नेंस वेयर जी। यू से ना दैट यू आर नॉट ग्रोइंग, इट इज क्लियरली विजिबल। एंड इन्वेस्टमेंट्स आप नहीं कुछ, मतलब सेविंग नहीं कर पा रहे, ये भी करेक्ट क्लियरली करेक्ट दिख रहा है करेक्ट। इसके अंदर। बट देन अगेन इट इज अ चैरियट कार्ड, सो इट विल बी गोइंग, यू नो, आगे अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम। Thank you so much. Thank you so Thank much. you. It was really All helpful. the best. I Thank you so hope much. I hope it helped and you should do well. Who's next? Swati, are you there? Avnish ji, Ah, yes ma'am. okay. हेलो। अच्छा, कृति has put it on chat. मैंने अभी देखा है, मैम प्लीज मीटिंग। अच्छा ओके, वो डायरेक्ट मैसेज कृति आपने किया है, ओ हम बाद में लेते हैं। Who's there? अभी सॉरी। हेलो मैम, अवनीश। हाँ जी अवनीश जी, हाँ जी बताइए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने करियर के बारे में जाना है। एक्चुअली करंटली मैं अभी बैंक में वर्क की हूँ। हाँ, जहाँ पे कि मतलब मैं बैंकिंग, प्राइवेट बैंक की सेल्स देखता हूँ और मुझे मतलब टीम लीड का प्रोफाइल है। अवनीश जी थोड़ा सा माइक को थोड़ा सा दूर रख के बोलिए, वो थोड़ा इको कर रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ मैं प्राइवेट बैंक में सेल्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ, जहाँ पे मेरा प्रोफाइल टीम लीड का है। ओके। दैट मीन्स कि मुझे 4-5 कैंडिडेट्स होते हैं जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं, उनको काम करवाना, मॉनिटर करना, ये सारी चीजें होती है। तो मुझे जानना है कि स्विच करना ज्यादा बेटर है या अभी इसी करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बेटर है, फॉर बेटर ग्रोथ, प्रमोशन के क्या चांसेस है? इसी में ही ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। Okay. क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे, चेंज करेंगे या कुछ ऐसा, तो थोड़ा जैसे ना मेंटली उतना पीसफुल नहीं रहेगा आपके लिए। जैसे अगर आप प्रोफेशनली लाइन अपना चेंज कर रहे हैं, यही पूछना चाह रहे हैं ना कि लाइन को। प्रोफेशनली लाइन चेंज नहीं, लाइन तो सेम रहेगी, बट जैसे कि ओनली बैंक, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में नॉर्मली स्विच कर लेते हैं एम्प्लॉइज। तो अभी जैसे मैं एक्सवाइजेड बैंक में वर्किंग हूँ, देन दूसरे बैंक से प्राइवेट बैंक में स्विच होता है, लाइन सेम बैंक रहती को है ही बस। चेंज, बैंक को चेंज करना चाहते हैं हाँ आप? चाहते हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, ये आपका क्वेश्चन है? हाँ, मतलब जैसे कि प्रमोशन के, जैसे कि यहाँ पे आगे करियर ज्यादा बेटर है मेरा, मैं चेंज करता हूँ तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। यहाँ पे ही बेटर लग रहा है, यहीं पे बेटर लग रहा है। यहीं पे ही बेटर लग रहा है। चेंज करने का आपका मन तो बहुत है, आपको ऐसा हाँ, लग रहा है, और वो आपका जो कार्ड है ना, वो यही आया है जो आपको सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। इल्यूजन जानते हैं ना, जैसे हाँ। कब्ज बाग दिखाते हैं, यू नो लाइक जैसे राहु, उस तरह का कुछ एनवायरनमेंट ऐसा बना है। आपके पास आ भी रही होंगी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, सो वो ऐसा दिखा रहा है कि वो अच्छा होगा। बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, जहां आप अभी हैं वहां ज्यादा बेटर सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी है, रादर देन शिफ्टिंग समवेयर। ओके। और वन मोर थिंग मैम, जैसे कि नॉर्मली तो मैं प्राइवेट जॉब में वर्किंग हूँ, ठीक है, तो इतना टाइम मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है इन प्राइवेट बैंक्स में, ठीक है। लेकिन मेरे फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, जैसे कि जब मैं स्कूलिंग में था, तब से ही मतलब स्पिरिचुअल, मतलब नॉट एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और स्पेशली फॉर पर्टिकुलर माई रिलीजन। हाँ, तो उसकी मतलब चीजें ज्यादा केयर करना, थोड़ा मतलब ज्यादा इमोशनली अटैच। हाँ, फिर उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये चीजें जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, फिर कुंडली देखना, पामस्ट्री करना, फेस रीडिंग, टैरो, ठीक है, तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं से समहाउ में रिलेट करता हूँ चीजों से। मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने कभी नहीं किया, और मैं सडनली किसी का हाथ देख कुछ चीजें बोलना, वो ठीक नहीं करना, विदाउट एनी नॉलेज, या किसी के बारे में अपने आप कुछ सुन के मैंने बोल दिया, ठीक है, स्पेशली अगर मैं किसी से बात में किसी को गलत बोल दूं, ठीक है, या फिर
अनजाने में बोल रहा हूँ, तो वो हम्म। चीजें सही हो जाना, ये सब चीजें हैं जो ये We've lost the connection. हमने इनका, ये अवनीश जी का, मैम उनका कनेक्शन नहीं दिखा रहा है। he's rejoined, but I can't see him now. He's rejoined, maybe he's joining. अवनीश जी आप आ गए वापस? Maybe we can take him up later. जो वो पूछना चाह रहे थे एक्चुअली मुझे समझ तो आ गया था बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए. एनीवेज हम दोबारा लेते हैं स्वाति, उनके अलावा कोई और बताइए. सुजाता मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू जी। वंदना जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत पेशेंस वाले हैं। थैंक यू Really सुजाता, liked it. थैंक यू. Really liked it. मेरे तो एक्चुअली सवाल तो मेरे इतने हैं कि मैं पर इतने में पूछ आई नहीं विश मैं आपके सारे सवाल लेके उनका सोल्यूशन दे पाऊँ. थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहूंगी। उसका काम भी स्टेबल नहीं है, शादी तो नहीं हुई क्योंकि काम नहीं है, इसलिए शादी के लिए मैं ज्यादा प्रयास नहीं कर रही। करेक्ट करेक्ट. 86 born। इनका स्पेसिफिक मुझे डेट ऑफ बर्थ आप बताइए. हाँ जी, 21 जून 1986। 1 जून 1986. 86 मुंबई में। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले उनके प्रोफेशन के लिए कि हाँ जी, पहले प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन सेट हो तभी करेक्ट मैरिजेस भी सक्सेसफुल होती हैं। खुद भी वो बहुत, उसको ना बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं है। नाम बताएंगे अपने बेटे का. वरुण नैयर। He had some love affair or somebody like in his life. Yes, he had. He had, no, the card is clearly showing that. उस वजह से भी थोड़ा सा ना कहीं इमोशनली टाइड अप भी है वो. आप अभी की बात कर रहे हैं? मतलब जैसे ओवरऑल सिचुएशन में अफेयर का तो चलो वो बात हो गई, बट ओवरऑल टाइड अप है तो. वर्क आप पूछ रहे हो ना? वर्क की देखिए पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज एज यू सेड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ. अभी उनका मतलब वो अभी कंप्यूटर में वो थोड़ा वो ऑनलाइन से कुछ कमाता है, गेम वेम खेल के। बट वो करियर नहीं। हाँ नहीं नहीं, career करियर वाइज जैसे आप पूछ रहे हैं ना, हाँ। उसमें पॉसिबिलिटी है कुछ बनेगा, बट कोई स्पेसिफिक लाइन मुझे बताइए कि वो किस देखिए, लाइन पे. ये एक्चुअली टिम्बर में था। मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। तो पहले मेरे हस्बैंड के साथ ये था, पर ही चीटेड इन बीइंग अ फादर आल्सो, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ओके ओके. उसके बाद ये काफी मेंटल हाँ देन हियर अगेन यू नो, जैसे मैंने अफेयर जहाँ बोला, उस कार्ड के साथ मेंटली जो डिस्टरबेंस और उन सिचुएशन की वजह से द स्टक पार्ट जो मैं कह रही हूँ ना, मेंटली जो स्टक हो गए हैं. So now it is more than the affair. I think that particular incident which happened in his life. इसको बहुत इफेक्ट हुआ, मतलब Yeah, इसको right. साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा। Hmm. इतना वो हर्ट हो गया था कि भाई बीइंग अ फादर ने मुझे ऐसे कैसे चीट किया। And precisely speaking, कोई और भी चीज हुई है उनकी लाइफ में, लाइक जैसे एक अफेयर हो गया, अगर उस तरह से हमने बात किया तो थोड़ा सेटबैक था. एंड विद दिस वर्क जैसे जो अब उनके फादर ने जैसे भी उनका रहा बिहेवियर या जो भी कुछ था, एंड देन ऑफ कोर्स ही इज नॉट हैविंग वर्क, शायद वो चीज भी डिस्टर्ब करे. तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स
because बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी there are चीजें couple हैं, of things. बहुत Yes, सारी yes, चीजें yes, हैं। yes. देखिए इतना बड़ा लड़का हो गया है, एकदम स्टेबल नहीं हो तो नेचुरली, और He is feeling very stuck in the situation right now. बहुत disturbed जैसे होता है ना, कि आदमी कहता है कि वो stuck है, कि वो एक कदम आगे बढ़ाने का उसका मन भी नहीं है, पर कि इसको कोई करूं। अपॉर्चुनिटी भी मिली, इसने सही उसका इस्तेमाल नहीं किया। But he is मैंने उस hardworking. He is very नहीं, ही इज नॉट, He's not. उसके साथ यही प्रॉब्लम है। देखिए अगर हार्ड वर्क करता तो कहीं ना कहीं तो वो अड़ जाता ना। His nature is he's not hardworking. ही इज नॉट हार्ड वर्क, ही इज नॉट डिसिप्लिन। He enjoys like party type वैसा कुछ नहीं ऐसा नहीं, नॉट एट ऑल, नहीं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। टिम्बर का काम कह रहे थे ना, हाँ जी, इसने टिम्बर का उनको काम, करना चाहिए था, और अगर अभी भी उसमें जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पता नहीं उसमें तो उसको बहुत लॉस हुआ। नहीं, अब जैसे आपने बताया कि वो आपके हस्बैंड ने ही कुछ ऐसा चीट किया या जो भी है, तो नहीं, कई फिर बार उसके जैसे बाद जो इसने पैसा इसने कमाया भी था, फिर से इसने उसमें टिम्बर में डाला, इसको पेमेंट्स मिली नहीं। कहीं ना कहीं मैं उसको भी देखती हूँ, वो इतना दूसरों के ऊपर डिपेंड कर जाता है, you know। पर ये टिम्बर का काम वैसे उनके लिए अच्छा, वो पिल्फरेजेस हुई या पैसों का जो सिस्टम है वो क्लियर नहीं हो पाया कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। बट हाँ जी, टिम्बर का काम इनको सूट कर रहा है एज पर कार्ड्स, टिम्बर का सूट कर रहा है, कर रहा है, इट्स शोइंग दैट। कुछ कर पाएगा लाइफ में, आई डोंट नो। लेट मी जस्ट सी प्रिसाइसली कि किस पर्टिकुलर उसमें आएगा। आपसे गाइडेंस लें। देखिए वंदना जी, वो मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता। देखिए आपकी एक सुननी ना चाहिए। स्टेज नहीं सुननी चाहिए। देखिए क्या होता है, बच्चे जब एक आफ्टर सर्टेन स्टेज वो नहीं सुनते हैं, और स्पेशली जब वो लाइफ में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, और ऐसी गड़बड़ हुई, मैंने उसको पहले बहुत सपोर्ट किया, मैंने उसको बहुत, आई एम बीइंग अ सिंगल पेरेंट, बहुत मुश्किल से मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा था। मेरे लिए बहुत बड़ा था, मैंने अपने पूरे बुढ़ापे की जो सेविंग्स थी मैंने उसके ऊपर लगा दी, और उसने वो जीरो कर दी। ही केम बैक। बताए क्या कार्ड्स के हिसाब से ना, यही जो लग रहा है मुझे, आप या कोई भी और जैसे वाइज फीमेल पर्सन अगर उनको गाइड करे, सो दैट विल एक्चुअली वर्क फॉर हिम। एंड इंडिया के बाहर वो जा चुके हैं, आपने मुझे अभी बताया, बट देयर इज अ पर्टिकुलर कार्ड विच क्लियरली शोज कि अगर उनको इंडिया के बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, या वो वहां रहते तो ऑब्वियसली बेटर होता, बट अब तो जो हो गया हो गया। अभी भी अगर कुछ ऐसा आता है ना, he should actually grab that opportunity नहीं पर वो अपने आप से, अब obviously because of देखिए कोई financials and चीज all। ऐसे लैप में तो आती नहीं, करेक्ट करेक्ट प्लेटर में तो आती नहीं है। सडनली होगा सुजाता जी, देख लेना, क्योंकि कार्ड्स में ना इट्स वेरी वेरी क्लियरली गिविंग दिस this particular, you can say, prediction that things will happen all of a sudden, most likely। बाहर जाने का अगर अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको तो वो रेडिली एक्सेप्ट कर लें। अगर सिचुएशंस, कई बार थिंग्स हैपन मिस्टिकली, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, तो सडननेस दिख रही है कार्ड में, बट उससे ज्यादा जरूरी है टू सिट डाउन एंड गेट गाइडेंस फ्रॉम सम लेडी फिगर। वो उनकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, वो आप भी हो सकते हैं, somebody who is kind of wise and he listens to that person। उनके साथ बैठ के थोड़ा डिस्कस और गाइड करें, he will definitely get a solution out of it। आपको लग रहा है कि ठीक रहेगा इस इसका लाइफ कार्ड्स आगे? में एग्जैक्टली इस कार्ड्स में दिख रहा है कि उनको सोल्यूशन मतलब वहीं से ही मिलेगा। ओके, पर कुछ बनेगा लाइफ में, कुछ अपना ही निकाल ले, मैं तो खुद कमा के खुद खा रही हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माय चिल्ड्रन। केयरलेस तो है, बहुत केयरलेस तो केयरलेस, रहेंगे ही बहुत हमेशा। केयरलेस है। ही इज केयरलेस। अब वो तो मैंने एक्सपेक्टेशन उससे छोड़ दी है कि भाई मैं कभी उससे कुछ एक्सपेक्ट कर पाऊं, बट आई जस्ट प्रे कि भाई ही शुड बी। जैसे आपने देखिए पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा कि अपना वो संभाल लेंगे, अपना कर लेंगे, आपको इसी बात की चिंता है, वो वैसा कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मत करो। शादी दिखती he है। will remain careless, he will remain careless। जो नेचर आप बता रहे हैं भी बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा चेंज होगा नेचर में, बट he will be able to handle himself
शादी आपने बोला एग्जैक्टली शादी के अंदर दिस इज अगेन 4 ऑफ wands जिसमें हम एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट दिखता है. सो बहुत पॉसिबल है कि शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं. और वो कब दिख रहे हैं? अगेन सम ग्लोबल कनेक्शन इट इज शोइंग. गर्ल कैन बी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और समवेयर इट इज शोइंग दैट. ओके, हो सकता है भगवान ने कुछ ऐसा उसके लिए सोच के रखा है. मतलब कुछ सडन देखिए जो मैंने अभी अपने कार्ड्स के हिसाब से देखा तो उसके हिसाब से सडननेस बहुत क्लियरली उसमें नजर आ रहा था. तो ही शुड कंटिन्यू विद टिम्बर. इसको बोलूं, इसको कुछ टिम्बर टिम्बर मुझे एज पर द कार्ड्स यस इट इज दिख रहा है. अगर इस टिम्बर वाले उस बिजनेस में कोई ग्लोबल कनेक्ट या कुछ इंटरनेशनल इट कैन बी कोई इंटरनेशनल कनेक्ट तो नहीं है टिम्बर. जैसे होता है ना कोरोगेटेड है या कुछ इस तरह का पैकेजिंग टाइप नहीं है. वो नहीं, वो नहीं. वैसा नहीं है. He can explore that once again. He can explore because it is not bad for him. It is not bad for him. And in the meantime, if suddenly he gets some opportunity from some global thing, it can be related to marriage also. ऐसे क्या होता है ना suddenly जैसे मैं बोल रही हूँ कोई marriage का ही proposal आ गया and then he is going abroad after marriage, something like that. So वो global connection बहुत दिख रहा है. देखो वंदना जी, मैं तो अभी किसी से बात भी नहीं करती हूँ बिकॉज किसी से लड़की से बात करना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना. Absolutely correct. Yes. जब आप अपने बच्चे के बारे में श्योर नहीं है तो दूसरे के बच्चे के को ला के फैमिली में मैं इतनी नहीं हूँ केपेबल कि मैं उसको लुक आफ्टर कर पाऊँ. और अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कर भी लिया सुजाता जी. पर्सनली स्पीकिंग लाइक आई शुड नॉट बी सेइंग दैट इट इज योर पर्सनल लाइफ बट मुझे ऐसा लगता है आई एम ऑल्सो अ पेरेंट तो मुझे लगता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह से कर ली है. नाउ इट इज हिज कॉल ना. उनको भी तो देखना. नाउ इट इज हिज कॉल. एक और पूछ लूं अपनी मेरी बेटी का जॉब चला गया है. मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा होशियार है. ये पहली बार हुआ है कि उसको जॉब से निकाला गया है. नहीं तो वो जहां पर भी जॉब के लिए करती थी लोग उसको कहीं छोड़ना भी चाहती थी, लोग उसको डबल ऑफर करते थे कि नहीं आप हमारे पास कंटिन्यू रखो. उसका क्या होगा? उनका बर्थडे कब आता है? 16th June 84. She is in Bangalore. She is married. आपने ये पूछा है कि उनका जॉब जो है हाँ वो क्या कर वो मतलब या उसका दिल था कि वो अपना काम करे. हाँ अपना काम करे. डायरेक्शन नहीं मिल रहा उसको. हाँ. अगर वो अपना काम करे तो वो कोई पार्टनरशिप वाला काम ढूंढे. पार्टनरशिप वाला. और अगर कोई ऐसा है जो उनके साथ इंटरेस्टेड है अभी ऐसा कुछ नहीं ऐसा प्रोपोजिशन बट पार्टनरशिप में करें अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और जॉब करें because she was earning very well. She was in a very good position. It is showing in the cards also. She is doing well. तो क्या उसको अच्छी क्या जॉब करनी चाहिए? Will she get? देखिए दोनों situations are going perfect for her. अगर उनको कोई अच्छी जॉब मिलती है she'll do very well. अगर उनको कोई बिजनेस करना है तो preference according to the cards is partnership or partnership like 2 people, not maybe more, but yes 2 people. It will be good, better for her rather than doing her individually. एक sole proprietor से better partnership उनके लिए रहेगी. अभी तक तो ऐसा both the things are equally good as per the cards. मतलब दोनों में जॉब हो तो कब तक हो जाएगा वंदना जी? जॉब में भी अगर होगा तो take some time, थोड़ा सा few months kind of like 1-2-3 महीने types. अच्छा it'll take another 2. 1-2 महीने types मिनिमम इतना तो लगेगा. मतलब 2-3 महीने. हाँ इसके बीच में बहुत अपॉर्चुनिटी आने की पॉसिबिलिटी है कि कोई
बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए और उस तरह का, तो अगर वो आती है तो प्रेफर करें कि वो पार्टनरशिप में ही करें अगर कुछ आता है ऐसा तो। ओके जी। एंड विद ऑल द थिंग्स जैसे उनका जॉब का उनको लगता है कि आई वांट टू चूज दिस जॉब और आई वांट टू डू दैट बिजनेस, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर शी हैज टू ब्रिंग इन दैट इमोशनल बैलेंस बिटवीन लाइक इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस करके प्रॉस कॉन्स अच्छे से इवैल्यूएट करके फिर डिसाइड करें। जल्दबाजी नहीं करनी है, इट हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड डिसीजन। नहीं, उसका हस्बैंड काफी समझदार है, मैंने वही बोला है उसे, मतलब सलाह से। financially वाला जैसे होता है ना कि ultimately when you're working you talk about money and all that, she will do good in either of the options. It is very very clearly seen, it is very very clearly seen here. मैंने 2-3 cards और भी निकाले हैं, so it is all like happy good cards. Anim, she was earning more than 6 figures per month. और वो जल्दी ही कुछ हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा हाई प्रोफाइल पे हम होते हैं, it's difficult to get into a job, but in the meantime if she gets an opportunity of a business, so it will again be good for her. It depends, दोनों में से कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू। अच्छा वंदना जी, आई वुड लाइक टू जॉइन टैरो, पर मैंने आपको बताऊं मैंने पहले सीखा है, पर मैं ना ब्लैंक हो जाती हूँ। मैंने जैसे एस्ट्रोलॉजी भी सीखा, मुझे ऐसे लगता है कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम एंड माय मनी आल्सो। नहीं आप ऐसा मत सोचिए, मैं अपना भी बताती हूँ, जैसे मैंने मैं ना ब्लैंक हो जाती हूँ, एकदम ब्लैंक, मतलब फिर लगता है कि भाई व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग, कि जब आप कुछ भी नहीं कर पाओ तो कुछ आप देख पाएंगे, क्या करूं नहीं करूं, बिकॉज ये मेरे लिए पैसा बहुत जरूरी है। एट दिस स्टेज आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट नीदर टाइम नॉर मनी। एज आई हैव टोल्ड यू, मैं खुद ही, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। वॉट एवर मनी आई हैड, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट ऑन, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिली है ऊपर वाले की दया से, बेस्ट ऑफ You live स्कूल्स in में। Bombay? You are in Mumbai? आई एम इन मुंबई। Which place in Mumbai? आई एम एट लोखंडवाला अंधेरी। Okay. अच्छा, मैं जैसे आपको यही बता रही हूँ कि जैसे अब टैरो कार्ड्स के साथ है, लाइक यू आर एट होम, यू आर होम मेकर। नहीं, मैं काम करती हूँ। आप क्या करते हो अभी? मैं एज ए कंसल्टेंट ट्रेनिंग में काम करती हूँ, नॉट एवरी डे बट हाँ इट इज फ्लेक्सिबल, द डेज आर फ्लेक्सिबल। हाँ, मतलब महीने में 15 दिन तक काम। आपने कार्ड्स पहले करा हुआ है, जिस सीखा है थोड़ा पहले? सीखा है, बट अगर पता आपको, मैं देखिए आपको बॉदर नहीं करना चाह रही और मैं आपको परसुएट नहीं करना चाह रही, आप वापस से आप सीखिए एक बार और, आप चाहें तो मेरे से या किसी से प्रॉपर तरीके से सीखिए, क्योंकि उसका रीजन है कि आपको एक फाइनेंशियल रीजन भी आपका है। तो अगर समझ लीजिए, अगर आपने सपोज मेरे से भी सीखा, तो मेरा पर्पस सुजाता जी ये है, प्राइम पर्पस, कि मैं आपको हेल्प तो कर पा रही हूँ, बट देन आई एम एक्चुअली एम्पावरिंग यू एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग। तो मैं उतना कॉन्फिडेंस आपको दे दूंगी कि आप आगे कुछ वर्क अपना स्टार्ट कर सको। यू कैन डू कंसल्टेशंस फ्रॉम होम, you can do readings from home, so that will be an add-on financial thing which is a support for you. So at least for my students I take the complete guarantee that they have to learn. So अगर आपको जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको, क्योंकि आप सीख चुके हैं, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप फिर से वैसे सीखे। आपको लगता है अगर आपको कहीं कुछ कन्विंसिंग लग रहा होगा तो आप मेरे से नहीं, मेरे को जैसे टू टाइम द इवेंट, देखो सबसे जरूरी क्या होता है, टू टाइम द इवेंट, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी, जैसे 2 स्टूडेंट्स तो मेरे अपने आके एक्सपीरियंस शेयर करते हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो सब एक्सपर्ट हैं इन लाल किताब, दे आर एक्सपर्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी, दे आर एक्सपर्ट्स, नॉट जस्ट बेसिक, दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट, बट दे लाइक दे ब्लेस मी ऑलवेज कि मैम हमने आपसे सीख लिया। जो अभी मैम ने भी शेयर किया था, राजबाला जी ने, जब हम स्टक होते हैं तो हम उधर से उसका सोल्यूशन ले लेते हैं। सो इट इज समथिंग वन मस्ट लर्न। जिनको और ऑकल्ट के फील्ड्स आते भी हैं उनको करना चाहिए। नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी भी मैं सीख रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ ना कि इतना मैंने अपने में वो प्रोग्रेस नहीं देखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले था, बहुत इंट्यूटिव थी मैं, अब वो एकदम सर्कमस्टांसेस सुजाता जी, कई बार सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, दे ड्रॉप आवर एनर्जी, सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वापस आप जो जैसे हैं आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। थोड़ा सा फेज जो होता है वो हमें थोड़ा ड्रॉप कर देता है,
So अगर आप intuitive हैं तो आप intuitive हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लो. Just stop worrying about that. ठीक है जी, अगर जब भी टाइम आपका मन सूटेबल बने, रहेगा तो मैं हाँ, जरूर आई वुड लव टू वंदना जी. whenever you feel that courage, whenever you feel that your mindset is that you want to join, आप एक बार करके देखो मेरे से, और मुझे लगता है कि वो आपको financially भी बहुत support के लिए बहुत अच्छा रहेगा option, because the way you are struggling, it will definitely help you. Thank you. Okay, all the best to Thank your children, to you. Thank you. Vandana ji. God bless you. God bless Thank you you. so much. Thank you. We have more people. कंटिन्यू करना है कि वेबिनार? हाँ, एक तो ये कृति का ले लेते हैं ना क्वेश्चन, हम 11:30 पे क्लोज कर देंगे. We still have 15 minutes, so we'll just prolong it for maybe 5 minutes, नहीं 10 minutes prolong करते हैं, and then 5 minutes we'll just have a conversation, and then maybe we'll close after that. तो हम कृति का क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत देर से चैट भी कर रही हैं. अच्छा, और अवनीश जी का मैसेज आया है, सॉरी मैम मेरी. हेलो मैम. या हाय कृति, आई जस्ट वांट, अवनीश जी इज देयर, उनको हम बाद में ले लेंगे, आपके बाद. कृति Yes, आपके ma'am. बाद ले लेंगे, आप बोलिए. और स्वाति आप देख लीजिएगा, अवनीश जी का क्वेश्चन रह गया था बीच में, तो हम बाद में ले लेंगे उनको. हाँ जी कृति. Yes, ma'am. यस Ma'am, I want to know when will my marriage take place? योर मैरिज. ओके, Yes, ma'am. अभी आप खुश नहीं हो विदाउट मैरिज? Ma'am, I'm divorced. Okay, sorry about that. But you are actually interested in getting married, ना? ठीक है, मतलब आप Yes, आपका ma'am. माइंडसेट बना लिया ना आपने? कृति, आपका बर्थडे कब आता है? It's 2nd July 1992. 2nd 2nd July. July. एक्चुअली क्या है कि अगर इस साल में आपकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. दिस ईयर इन पर्टिकुलर कुछ बन रही है पॉसिबिलिटी? मैम, अभी तो कोई सीन ही नहीं है क्योंकि डिवोर्स तो पहले ही हो गया था, पर हाँ पेरेंट्स तो चाहते हैं. इस साल में अगर होती है तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट It's न्यूमरोलॉजिकल. number 2 coming 3 times. No, it's not that. We actually work on those personal numbers जो होते हैं ना, उसके हिसाब से वो सेलिब्रेशन वाला नंबर है बेसिकली. It's 2/7/1992. हाँ, I totaled it, like वो मैंने कर लिया. तो इस साल में होती है तो अच्छी रहेगी आपके लिए, बट ठीक है, कार्ड में भी देखते हैं. अभी जो शादी को लेके आपको एक्सपेक्टेशन आ रही है ना, वो आप कहीं ना कहीं, जो भी पता नहीं, अभी कोई प्रपोजल्स आए हैं वैसे? यू गॉट एनी प्रपोजल्स? नहीं. थोड़ा सा इस पे वर्किंग करके ही अपना माइंडसेट बनाना, जब टॉक टू द पर्सन, जिससे अगर सपोज कोई आपके पास आता भी है मैच के लिए या कोई प्रपोजल फैमिली का आता है, तो थोड़ा सा ना, जैसे आप बात क्लियर ये कर लेना कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस वाली फैमिली ना हो वो. I don't know about the past relationship you had, but you will have problems if you will not clear it out पहले. अब लव मैरिज होगा या अरेंज? लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं ज्यादा. Ma'am, what are my cards right now? Can you tell me? As I know it. Card is Ace of Pentacle. Okay. Ace of Pentacle, and there was Lover's card where I talked to you. Wow, that's nice. That's nice. But it is showing that you should not be having, you should not be having those bandish wala thing which is there in the Devil card. So वो नहीं होना चाहिए. So when you actually get a proposal, or the person, suppose you happen to meet somebody and you
you start liking that person. तो एक बार talk it out कि restrictions जो आपको लगता है कि आपके लिए problem दे सकती हैं, शायद आपके past relationship से भी एक experience थोड़ा सा रहा होगा where you were, you know, finding it difficult to live with that person. उन चीजों को Yes, clear ma'am. Yes, ma'am. उन Yes, चीजों को ma'am. clear कर It is. लेना. It is very is there. clearly showing here. ठीक है, उसको clear Yeah. नहीं करोगे तो problem आएगी. And जो भी person आपको मिलता है उसमें go with your intuition also. जैसे ये नहीं होता कि अब क्योंकि unfortunately you had a bad relationship जिसकी वजह से split हुआ, तो हमें क्या होता है ना कि जैसे हम ये बोले कि now I have to go with the protocol कि ये ठीक नहीं है, वो गलत है, ऐसा करके ये मत सोचना. Go with your intuitive feeling there also. अगर कोई person आपको लग रहा है कि हाँ he seems to be good, he seems to be fine, you can go ahead with that because शादी is something like a gamble, you know, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने एक Ma'am, checklist. but ma'am, what should I think? My parents are worried about me, but I don't know what to do. Should I approach any guy myself, or the proposal will itself come to me? That's what in my mind. Actually go with the flow. Go with the flow. If somebody comes in your way, ठीक है, बहुत ज्यादा उस चीज का प्रेशर लेके कि मुझे ढूंढना ही है किसी को, ऐसा जरूरी नहीं है. Just go with the flow. If your family is getting somebody, good. If you meet somebody, you get to know somebody, absolutely fine. दोनों ही options में वो ठीक है, मतलब ऐसा कोई problem नहीं है. And ma'am, currently I'm a teacher, so but I have done BTech in computer science. But my career prospects are very low. I'm just earning 14,000 something. So my question is that when will my career will improve according to the cards? कीर्ति जी और भी लोगों का क्वेश्चन है, एक एक करके प्लीज लीजिए ना. इसके बाद हम कीर्ति का ये ले लेते हैं. When बोल रहे हो? When Career will improve. लगेगा टाइम, एटलीस्ट अ ईयर तो है, चलेगा अभी एक साल भर, क्योंकि वैसे भी टेरो कार्ड्स का एक थोड़ा लिमिटेशन भी जाता है ना, एक साल तक का हम ज्यादा रीडिंग बहुत प्रिसाइसली So the marriage will not take place this year. If it happens this year, it is good. Okay, according to you, the year is favorable. According to the cards, in fact, much before the cards, I calculated the numbers. तो numbers और cards को मिला के भी अगर मैं देखूं तो इस साल में अच्छा है, but बाद में भी अगर हो, go with the flow. Either your family is getting somebody or you meet somebody, it is absolutely okay. Intuitive feeling, आपकी gut feeling पे जाना, और gut feeling में ये मत सोचना कि एक list of things होता है ना, checklist बनाई हुई है, वैसा करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई सही लग रहा है तो सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट क्लियर कर लेना अपने सारे, you know, doubts. Ma'am, listen to me. Ma'am, I'm from Rajasthan, so the person will be nearby Rajasthan or can be outside like Bangalore, Pune. ये बात कीर्ति, फिर हम दूसरे किसी का क्वेश्चन लेते हैं. मैं एक बार नियर बाय. Sorry. क्योंकि there are many more people, Just generally. Yeah, it's okay. I'll just take it back. Near or far, ना यही पूछ रहा. फार लग रहा है. Far. मतलब राजस्थान है तो राजस्थान से, मतलब आपके घर से दूर है. अब ऑब्वियसली वो राजस्थान भी बहुत बड़ा है, तो एक मिनट रुको जरा, मैं देखती हूँ. हाँ थोड़ा दूर ही लग रहा है कीर्ति, ठीक है, थोड़ा दूर ही लग रहा है. But the second marriage will be good, ना? ऐसा मुझे लग तो रहा है. और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कीर्ति, आई हैव टू पिक अप समबडी एल्स. कीर्ति जी प्लीज, हाँ. और भी लोग हैं. ठीक है, नहीं ठीक रहेगा, डोंट वरी. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी पहले वाले कार्ड में भी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम नेक्स्ट लेते हैं किसी को. ऑल द बेस्ट, यू गेट. Thank you, ma'am. या थैंक यू. हाँ जी, किसको लेना हमने? स्वाति. अवनीश जी मैम. ओके, या अवनीश जी, या उनका कॉल ड्रॉप हो गया था ना बीच में. हाँ जी अवनीश जी, आर यू देयर? उनकी आवाज नहीं आ रही है. अवनीश जी अभी अनम्यूट करिए प्लीज. अब हो गया अनम्यूट, आप बोलिए कुछ. आपकी आवाज आ नहीं रही है हमें. मे बी आप अपने वो एयरपॉड्स जो आपने एयर प्लग्स लगाए वो निकाल दें और
आप स्पीकर से बात करें फोन के तो शायद आवाज आ जाएगी। हाँ, अभी आपकी आवाज आने वाली है। आप फिर म्यूट हो गए। किसी और को ले लो, शादी अभी उनका कॉल ना कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो, हाँ, हीना अब जी। आगे आगे फाइनली आ गए अवनीश जी। हम बताइए अवनीश जी। हेलो या हेलो मैम अभी हिना जी आप वेट करिए अवनीश just जी। a second, he's just completing his question. माय I'll क्वेश्चन take इज it ऑन up. Yeah, I'll take you. अवनीश जी प्लीज बोलिए। मैम जैसे आपको मैं बता था कि मेरे इनिशियल स्टेज मतलब काफी आई थिंक मुझे जो याद है जब मैं छोटा ही था, आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड से, जी। तब से मैं कुछ चीजें बोलता हूँ तो सच होती हैं हाँ जी, लोगों हाँ को। जी, हाँ जी, ठीक आपने है, बताया ये। हाँ जी। कोई चीज एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है और मैं पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे ना, मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता भी नहीं हूँ, मतलब पसंद करता हूँ पर मेरे बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि जो चीजें एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो चीजें आगे चेंज भी हो सकती हैं, वो सही नहीं होती हैं कि हम किसी का आज डिसाइड कर दें कल आपका ऐसा होगा, वो नहीं, जैसे बोलते हैं कि फ्यूचर करेक्ट। होता है। तो क्वेश्चन बताइए आप। हाँ, मैं समझ गया आपका वो सारी बात। एक्चुअली मेरे को सुनाई दे गया था उस टाइम भी पूरा। आप अब मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताइए अपना। मतलब ये चीजें इंट्यूशन वजह से क्यों होती हैं, रीजन ये है। ये और इसलिए इससे होती है कि आपको डिवाइन गाइडेंस ये कह रही है कि आप इस फील्ड में थोड़ा कुछ करिए, आप इसको सीखिए थोड़ा। क्योंकि आपका बिलीफ, देखिए बिलीफ सिस्टम ना दो तरह के होते हैं। मतलब इसको मैं बोलूंगी कि जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो दो तरह से एस्ट्रोलॉजी पिकअप करते हैं। एक होते हैं जिनका विश्वास होता है, बहुत मानते हैं और उसको सीखते हैं। एक होते हैं कि जो क्यूरियस होते हैं कि क्या है, कैसे है, कुछ तो है, और वो इस फील्ड में आ जाते हैं और उसी से उनका फेथ डेवलप होने लग जाता है। तो शायद आप सेकेंड कैटेगरी हो, जहां आपको शायद लगता है तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए भी ना उस चीज में आना बहुत जरूरी है। जब हमें किसी चीज का जवाब चाहिए, उस सिचुएशन को फेस भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपको कोई भी मोडालिटी लगती है, आई एम श्योर आपका 8th हाउस एक्टिव होगा कहीं ना कहीं उसका लिंक जरूर होगा, इस तरह से, क्योंकि आपका बार बार इंक्लिनेशन आता है उस तरफ। और स्पिरिचुअली आप वैसे भी आप कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है स्पिरिचुअलिटी, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ पिकअप करना चाहिए, ये मेरा कहना है। ओके मैम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस कह रही है कि आप इसमें कुछ करिए, अपना और औरों का भला करिए। तो मैम इसमें से कौन सी ट्रेड में स्टार्ट भी? जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है अवनीश जी। मैं तो कहूंगी कि टैरो कार्ड्स कर लो मेरे से, मैं और भी चीजें कराती हूँ, बट आप ये कर लो क्योंकि आप इंट्यूटिव चीज बोल रहे हैं। तो आई थिंक जोक्स अपार्ट, सीरियस नोट पे अगर मैं आपको गाइड करूं, तो जो आपकी इंट्यूशन और जो आपका लगता है कि आपका बचपन से उस चीज के बारे में कि आप किसी को कुछ कह देते हैं तो प्रोडिक्शन ठीक हो जाती है, तो आपको कार्ड्स करने चाहिए। क्योंकि कहीं आपका वो सिक्स्थ सेंस जो है ना वो काफी एक्टिव है, जहां आपको गट फीलिंग होती है। ठीक है मैम। अंडरस्टैंड? अगर आप मेरे कोर्स को करें या आप कहीं से भी करें, तो मुझे लगता है फॉर पर्सन लाइक यू, जो आपने बैकग्राउंड अपना शेयर किया, आपको कार्ड से शुरू करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। We'll take up who was there. Hina ji was there. हेलो मैम Yeah, hi Hina ji. Can you? मैम नाइस टू सी यू मैम यू आर वेरी पॉजिटिव और Thank you, thank you. Can I see you also? या Okay. Yeah, you're there. Thank you. मैम प्लीज टू सी ना मैम मेरी शादी का मैम अच्छा, okay. क्या पूछना चाहते हो बताओ? कि क्यों नहीं हो रही एंड आई एम नॉट गेटिंग द परफेक्ट मैच। मतलब परफेक्ट मैच के मतलब ऐसे तो मैं ऑप्शंस देख ही रही हूँ, बट एक होता है ना कि मैं सिर्फ शादी इज नॉट माय पर्पस कि हाँ मैं सिर्फ शादी करूँ कि टू बस एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब आप मेरा देख के शक्ल बर्थडे और बताइए, बर्थडे कब आता है आपका? मैम 22 अक्टूबर 1989 2 my 2 birthday is coming. 2 October you said? Yeah, 2 yeah my number is 4. कुछ अभी कुछ है इन द मेकिंग, लाइक कुछ ऐसा प्रपोजल या कुछ? मैम ऐसे तो बहुत आते हैं मैम, बट ये राइट नाउ कुछ ऐसा चल रहा है? नो मैम अभी राइट नाउ करंट में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आने वाला है फिर जल्दी। थैंक यू मैम।
मतलब शादी है मेरे लाइफ में। इसी क्वेश्चन पे कार्ड खोल के हाँ है तो लग रहा है लग रहा है मैम, श्योर होनी चाहिए। कार्ड तो उस कार्ड मतलब उस क्वेश्चन पे जो कार्ड खोला उसमें तो पॉजिटिव ही आया था। अच्छा मैम, मतलब मेरा मतलब फैमिली और हस्बैंड टू बी। देखो ये थोड़ा सा ना मैं बता दी, जैसे लॉन्ग टर्म है ये चीजें। जैसे अगर आप बोलो कि हम थोड़ा इसको कंस्ट्रेंट ऑफ टैरो कार्ड्स और ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स दोनों ही मानते हैं कि हम रीडिंग, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम लाइफ लॉन्ग, जैसे आदमी अगर 100 साल जिएगा तो हम कर सकते हैं, बट टैरो कार्ड इज लिटिल रिस्ट्रिक्टेड टू अ ईयर और थोड़ा सा ज्यादा उसमें इस ईयर हो जाएगी। तो हाँ मैं वही देखना चाह रही थी एक्चुअली, आपने नंबर्स जो बताए थे उसके हिसाब से 22 10 या 19 हाँ तो ऐसे लग रहा है कि आप इमोशनली, जैसे हो सकता है ना कि आपका मन जो है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस साल में, जैसे मुझे लग रहा है कि होने की बहुत सालों से मैम। हाँ इस मतलब मेरे साल को में हाँ, मुझे पॉसिबल। हमेशा से था, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बट ना मुझे सिर्फ एक यही है। और मैम मेरे से ना बड़े, अपने से बड़े लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे ऑल आर मैरिड। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं नहीं भी चाहती तो भी दे आर अट्रैक्टिंग मी। मतलब लाइक, मतलब मैंने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, चाहे वो मेरे फैमिली के उससे, मेरी फैमिली इतना सपोर्ट करती है। मतलब उनका सबका मोटिव ना एक ही मतलब हुआ है। मेरे इतने लिंक्स है, बट मैं उन लिंक का किसी का यूज नहीं कर सकती। हाँ उसको मत और मैं करो स्ट्रगल भी क्योंकि कर रही हूँ अपनी करियर में मैम। अगर आई एम आप उसको वर्किंग फ्रॉम करोगे भी लास्ट ना, 15 years, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखो अगर उस तरह का कुछ आप उसको पॉजिटिव वे में एक स्टेप अहेड करोगे भी ना उस तरह की चीजें, तो वो सिर्फ उसी के लिए होगा कि आप अकेले नहीं रहना चाहते। वो जैसे आपने बोला कि आप शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि शादी ही मेरे को करनी है, इट्स नॉट योर पर्पस। तो अगर आप इस तरह का कोई भी अकॉर्डिंग टू द बर्थ डेट यू सेड एंड द कार्ड्स, मैं उसके बेसिस पे ही बता रही हूँ कि अगर एग्जैक्टली कोई मैम। ऐसा जो पर्सन आप चूज करते हो, जैसे आप कह रहे हो कि आपके फैमिली या आपके कोई लोग जैसे जो आपके टच में आते हैं, आप उनके साथ वाला कुछ भी नेक्स्ट स्टेप पे मत ले जाना। उसका रीजन इट इज वेरी वेरी क्लियरली सीन विद द नंबर्स एंड द कार्ड्स कि अगर आप वैसा करोगे तो सिर्फ इसीलिए करोगे क्योंकि आपको अकेला अच्छा नहीं लग रहा, यू वांट समबडी, यू नो। मतलब मेरा थोड़ा सा ये, मैं आपको बता देती हूँ, अब डॉक्टर से तो क्या ही छुपाना। मतलब इट्स माय वीकनेस कि मेरे को लगता है कि कोई मेल सपोर्ट हो ना तो आई कैन डू वही वही मैं एनीथिंग। बोल रही हूँ, वो मत करो, मैंने यही हाँ मैम, मैं नहीं कर, इसीलिए मैम मैं आज तक अपने आप को बहुत सेफ साउंड करके चलती हूँ। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपको, क्योंकि आपके नंबर और आपके कार्ड में ये आ रहा था, मुझे तो नहीं पता, आपने अब बताया कि आपको एग्जैक्टली ऐसा मैम, लगता मैं तो है कि खुद मेल ही फिगर हो तो आप प्रोटेक्टेड फील। सो बिकॉज यू आर अलोन दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू मेक रॉन्ग चॉइसेस, यू नो। हाँ मैम वही है, वही इसीलिए मुझे बचा के, वही मुझे बचा के रखो। हाँ तो तो मेरा आपको वो करियर नहीं कुछ करना। सेटअप होगा क्या? मतलब मैं जॉब तो मैम 15 ईयर से कर रही हूँ, कंटिन्यूअस एक ही प्लेस पे। एनटीपीसी आप किस में बीएचएल हो, है मेरी फूड कंपनी। इंडस्ट्री में हो क्या? No, no, ma'am. I am in power sector, NTPC BHL. It is a EPC company, but I am on contractual basis, continuous with 15 years. From last 2008 से I am continuous अब with मुझे like एग्जैक्ट 19. क्वेश्चन बताओ अपना कि मैम अब जॉब मेरा, मेरा करियर कुछ है या मतलब करियर, बिजनेस मेरा कुछ है? क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ। आई एम डन कलर थेरेपी करियर ऑल्सो। जो भी रहेगा उसमें पैसे आपको मिलेंगे आगे, कमिंग इन फ्यूचर। इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू चेंज अ लाइन ऑफ वर्क, इफ यू स्टे इन द सेम लाइन ऑफ वर्क, यू विल हैव मनी, गुड मनी। तो आप उसके बारे में चिंता मत करें कि आपका पैसे का कैसे रहेगा, सो यू विल हैव गुड मनी, डोंट वरी ऑन Even दैट। I have purchased tarot cards also. मतलब somebody has gifted me. सो मैंने उसको ओपन नहीं किया क्योंकि उसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई हैं। तो मैंने अभी उसको ओपन नहीं किया क्योंकि आई डोंट हैव दैट स्पेस टू बी लाइक बेबी की तरह उसको रखने के लिए। बट अभी मैंने उसको ऐसे ही केप्ट रखा, मतलब रखा हुआ है। आपने सीखा हुआ है टैरो कार्ड्स? नो मैम, नो मैम, उन्होंने गिफ्ट क्यों बिल्कुल दिया भी। आपको फिर? मैम मेरा बड़ा मन था कि गिफ्ट लेने का टैरो। अब आप फिर सीख लो टैरो कार्ड्स, मुझे लग रहा है। एग्जैक्टली मैम, मैंने अपना नाम चेंज कराया है। उसका वाइब्रेशन कैसा लग रहा है आपको? हिना शर्मा, मतलब डबल S डबल R।
रेडमी तो मेरा फोन का आ गया वो। नहीं तो न्यूरोलॉजी को एक्चुअली डिटेल में देखना पड़ेगा, बट इट्स साउंडिंग गुड। अच्छा आप देखिए, कमिंग टू योर पॉइंट, जैसे आपने पहला क्वेश्चन था आपका जो आपके वर्क रिलेटेड था, हमने दो क्वेश्चंस को क्लैरिटी से लेते हैं। यस मैम, ठीक है एक ठीक तो है मैम। आपका वर्क वाला था, शादी उसमें and वो। आपको अगर सेम रहता है, चेंज होता है, अल्टीमेटली वही होता है ना कि हम उसमें हैप्पी रहेंगे या हमारा मनी पार्ट कैसा रहेगा। सो इट इज वेरी वेरी क्लियरली सीन, इट इज गुड, अच्छा ही रहेगा। थोड़ा मेहनत आप करते हो अगर, तो मेहनत करते रहना बस, जो भी फील्ड होगा आपका, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा आप परफेक्शनिस्ट भी हो कहीं ना कहीं, हो आप क्या? मैम मतलब मैं जिस काम में पड़ जाती हूँ ना, हाँ तो मेहनत करते हो ना, बस बस वही मतलब मैं, करना, बस पर बस बस। मिलता नहीं है मैम, पैसा नहीं मिल रहा, बस मिल बाकी जाएगा मिल सब जाएगा। है। ये एक क्वेश्चन आपका हो गया इसका, और दूसरा वाला अगर हम लेते हैं, शादी, तो आपकी मैरिज की बात अगर आती एग्जैक्टली है, मैम, वो मेरा मैरिज बहुत में मैंने मेजर एक है। गाइडेंस तो आपको दे ही दी है कि जस्ट यस बिकॉज यू मैम, अलोन यू डोंट हैव टू मेक रॉन्ग चॉइसेस। नो नो मैम, दूसरा, आज तक नहीं हाँ बची यस हुई हूँ। यस यस यस। अब दूसरा वाला हम देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कब होना चाहिए। किसी फीमेल फिगर से ही आप कोई गाइडेंस लीजिए, अपनी मम्मी हो या आपकी कोई एनीबडी लाइक। एवरीबडी नोज कि ये बच्चा मतलब एलिजिबल कैंडिडेट है, एवरीबडी नहीं नोज। नहीं, नॉट अबाउट दैट, कहने का मतलब है जिनका आपको लगता है गाइडेंस थोड़ा एक विजडम वाला होता है, एक समझदारी से जो गाइड करते हैं। एक होता है ना, सब गाइड सब बोलते हैं, सब मुझे और सब मेरे को बस बोलते रहते हैं ये कर लो वो कर लो, तो कहना हो गया। एक होता है कोई समझदारी से बैठ के आपके साथ बात करता है, ऐसा कोई आइडेंटिफाई करो अ फीमेल पर्सन इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, उनसे गाइडेंस लो अबाउट मैरिज, या अगर वो कोई प्रपोजल लाए आपके लिए, वो शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है मैम, मतलब ठीक है मैम, मतलब हो जाएगी इस ईयर का कुछ है, क्योंकि मेरे को तो अभी तक कोई नहीं दिख रहा। एक आया भी था, एक एक प्रपोजल आया था, मतलब मेरे को बिल्कुल लग रहा था कि ऐसे रोका टाइप हो जाएगा, मैं बिल्कुल सच सवर के इस गई थी साल में पहली देखो बार। अगर होगी ना, इस हम्म, साल में होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। अच्छा इस ठीक है साल मैम, में होती है तो थोड़ा नेक्स्ट सा। हाँ मतलब इस साल का स्पेसिफिक आपने पूछा, और इंडिया के बाहर का प्रपोजल आता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा बाद में, इस साल के बाद। इस साल में मैरिज अगर होती है तो हेल्थ के लिए आपकी और थोड़ा लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि दैट क्लैशेस और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। इस साल के बाद ही प्लान करना, कुछ भी अगर आता भी है अभी तो आप बाद में ही प्लान करना। एंड ठीक है मैम। ओवरसीज इज गोइंग टू बी बेटर, थोड़ा एक होता है ना, ऐसा नहीं 19-20 का फर्क, ज्यादा नहीं, 19-20। ठीक है, मन तो मेरा ओवरसी का ही है, बट ठीक है आपने बोल दिया, आप अपनी ब्लेसिंग्स अब वो दो मैम। अफर्म अफर्म कर लो ना, बाहर का ही हो यस मैम, अफर्मेशंस तो वर्क्स अ लॉट मैम। जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू टू थैंक सी यू यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या who's next? स्वाति, हमारा टाइम इज 35 हो गया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट। कुसुम जी। या कुसुम जी, हाय, वी आर टॉकिंग, अभी पहले हमारी बात हुई थी ना? हाँ हुई थी हाँ स्टार्टिंग हाँ, में मेरे को लगा किसी और कुसुम से तो बात नहीं कर रही मैं। हाँ वो नहीं क्वेश्चन रिलेटेड नहीं थी, आई रिमेम्बर इन द इनिशियल चैट्स वी वर या टॉकिंग। यस, मैम मेरे को आपसे टैरो कार्ड सीखना है बिकॉज आई रियली लाइक द वे यू आंसर्ड ऑल द थैंक यू, क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कुसुम। यस, आई वुड लव टू टीच, एंड जैसे मैंने बोला मेरा पर्पस वही है मेन के, अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से सिखाऊं जब तक कि आपको पूरी तरह परफेक्ट, से समझ नहीं आ जाए। ओके। मैम मेरा क्वेश्चन है कि सी आई हैव हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, और मेरा बिजनेस मैंने कुर्ती का शुरू किया है, तो वो मैं दुकान पे ही रखूं या घर पे शिफ्ट करूं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू बैलेंस। बच्चों को देख सकती हूँ, ना खाना बना पा रही हूँ, ना दुकान देख पा रही आजकल तो आपको नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, हूँ। हाँ कि करेक्ट। नाइटमेयर्स थोड़े रहते हैं क्या रात में सोते हुए, जैसे थोड़े थोड़ा थॉट प्रोसेस नेगेटिव, सपने हाँ जो भी ऐसा हो रहा है? हो नहीं रहा, बट मेरे को नींद नहीं आ रही है। आई एम हाँ, मतलब टेकिंग डिस्टर्ब दिख रहा है, घर की चिंता लगी हुई है। हाँ वही फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज हस्बैंड का भी बिजनेस इतना नहीं है, सो हाउ विल ही डू। आपके हस्बैंड का वर्क कोई एमएनसी वगैरह में है, कैसे है? इनटू वॉलपेपर्स, वुडन फ्लोरिंग। So your precise question is about your finances. या Finances. Um,
फाइनेंशियल चैलेंज तो थोड़ा टाइम अभी वैसे है, कुसुम, अभी चलेगा आपका थोड़ा सा। सो हम अभी बस आप जैसे होता है ना, गाड़ी खींचते हैं हम बिना सोचे समझे, बस चला रहे हो, ऐसा सिचुएशन दिख रही है। ओके थोड़ा सा तो है टाइम, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके मतलब इसको करेक्ट होते होते ना वही 6 महीने टाइप्स लगेंगे, 4 से 6 महीने तक जाके थोड़ा स्टेबिलिटी लग रही है कि थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओके एंड मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर तक आपको थोड़ा सा ना, जैसे तलवारें टंगी रहती है उस तरह का सिचुएशन की, आज ये प्रॉब्लम है, आज को कैसे मैनेज करूं, आज उसको कैसे ये ऑन ऑफ चलेगा, ये ऑन ऑफ ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सुधार आ जाएगा इस सिचुएशन में। और ओके आपने बोला कि वो शॉप और घर के बीच में आप हाँ शफल करते हो, जो आपके लिए डिफिकल्ट है। हाँ तो कुर्तीज का मैं घर पे लाके करूँ तो दैट इज बेटर, और शॉप ही रखूँ? शॉप का रेंट है क्या? हाँ रेंट है, शॉप रेंटेड है। आप वैसे घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि विल वो दैट विल दैट वर्क फॉर मी? या हाउ इज द शॉप डूइंग अदरवाइज, मतलब आपको लगता है कि वहां पे रहने से या वहां होने से बिजनेस, जो वो वाला पर्टिकुलर बिजनेस अच्छा हो रहा है? नहीं, मैं एग्जीबिशन पे फोकस कर रही हूँ, वो तो सब हाँ आप हाँ। वही करो ना कुसुम, यही जैसे आपने अपने एग्जीबिशन वर्ड बोला, तो मेरे को ये लग रहा है, जो अब मेरे को सारे कार्ड से क्लियरली समझ में आ रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, वो ये है कि आप शॉप वाला पार्ट तो शायद छोड़ दो, घर से करो, एंड यू डू फोकस ऑन एग्जीबिशंस जैसे आप कह रहे हो। मैम मेरा कल एक एग्जीबिशन है, सो हाउ विल इट वर्क? कल कल है मेरा, 2 days का है। अच्छा होगा। ओके, विल आई कैन आई मेक अ गुड प्रॉफिट? तो एक काम करना आप ना, जैसे एग्जीबिशन है कल, तो थोड़ा सा एक तो ऑब्वियसली आपका जैसे क्योंकि गारमेंट से रिलेटेड वर्क है और वो सब चीजें, तो आप खुद भी लाइक ड्रेस अप एंड गो एग्जीबिशन के हिसाब से, जैसे जितना आप नॉर्मल समझ लीजिए, अगर आप एक सिर्फ लिप कलर लगा के जाते हो तो यू डू लाइक टू अप मेकअप एंड स्टफ वैसे रेडियो, बिकॉज आई वांट यू टू यूटिलाइज योर वीनस इनटू दैट। और बाकी अगर चैंट कर पाओ तो वीनस मंत्र मॉर्निंग में चैंट कर लेना, क्योंकि आपने बताया गारमेंट्स से रिलेटेड है ना आपका बिजनेस, ओके गारमेंट्स हाँ, कुर्तीज यू सेड ना, यस so you chant in the morning, you just sit down and Shukra Bhagwan का thought लेके just pray for 108 times chant करना, and have it that affirmation कि आपका जो exhibition है वो अच्छे results दे। Do it both the days and dress up very nicely and go, even if you are challenging with time कि अभी मेरे पास तैयार होने का टाइम नहीं है, but अच्छे से जाना है, ठीक है? ठीक है। ये रेमेडियल पार्ट्स हैं, दो चीजें जो मैंने 2 दिन की। मंत्र क्या है? कैन यू टेल मी मंत्र? मंत्र You can find it on YouTube, शुक्र का मंत्र मिल जाएगा आपको। So it is 108 times, आप चांट कर लेना मॉर्निंग में कल, परसों भी मॉर्निंग में कर लेना। बस वैसे भी आप अगर जैसे जा रहे हो किसी अच्छे काम के लिए, तो मंदिर में बैठ के थोड़ा मत्था टेकते हैं और ऐसे करते हैं ना, तो आप मंदिर मतलब चांट कर लेना बस एक बार, ठीक है? मैं वन क्वेश्चन कैन आस्क? मेरा और मेरे हस्बैंड में इतना नहीं बनता है, मैं छोटी छोटी बातों पे हमारी झगड़ा होता है। सॉरी आई एम टेकिंग योर टाइम। नो नो इट्स ओके। तो आपको पूछना है कि झगड़ा क्यों हो कब रहा है? खत्म होगा या क्यों खत्म होगा? क्यों हो रहा है? बस छोटी छोटी बातों पे, दैट इज नॉट बिग इश्यू। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, जैसे अभी राइट नाउ इन योर ओवरऑल लाइफ, आपके हस्बैंड और आप जो फेस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लग्जूरियस चाह रहे हो आप लाइफ, वो हो नहीं पा रही है, ठीक है? आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, मतलब आप उसको करेक्ट करें तो अगर मुझे ज्यादा पता, क्योंकि वो होता है ना कि जैसे हम चाहते हैं कि घर में हम एक प्रॉपर, बिकॉज देखिए ये वाला कार्ड है, आप थोड़ा सा कार्ड जानते हो, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, ये
ओके, सपने this, देखने हैं। yeah, हाँ, this is actually showing you the luxury. इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट जो आपके क्वेश्चन पे बेस मेरे पास थॉट आया वो ये कि वो चीजें अभी आप नहीं कर पा रहे. व्हाट यू वांट फॉर यू, योर फैमिली, सेम गोज विद योर हस्बैंड, ही वांट्स फॉर यू एंड यू नो देयर हिज फैमिली. सो वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं एक सिचुएशन ना जैसे वो एक स्टैग्नेंट सी हो गई है, वो चीजें आगे प्रोग्रेस नहीं करी, तो उस वजह से इरिटेबिलिटी जो आ जाती है ना, उसकी वजह से होता है. सो वही है कि थोड़ा पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रखना होगा, आपको या उनको, यू नो व्हाटएवर, दैट विल ओनली वर्क. एंड दीज आर माइनर थिंग, कोई मेजर लड़ाई झगड़े नहीं है, छोटे छोटे ही होते हैं. और सिर्फ ये है कि सिचुएशन की वजह से जैसे थोड़े टाइम में सिचुएशन बेटर हो जाएगी, जो मुझे दिख भी रहा है कार्ड्स में, तो जब बेटर हो जाएगी तो आप अपने आप देखोगे थोड़ा कम हो जाएगा. ओके मैम, एक लास्ट मिनट, ये वंदना जी, ये हाँ जी. कुसुम जी, मैं आपके लिए एक रेमेडी दे देता हूँ. कल जो आप एग्जीबिशन पे जा रही हैं, आपकी कुंडली में कहीं शुक्र केतु का योग है क्या? आपको कुंडली पता है अपनी? नहीं सर, नहीं पता मेरी कुंडली. तो अब एक काम करिएगा, हाँ जो आप कुर्तों का बिजनेस करती हैं, वो हाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो केतु को बिलोंग ओके करती हैं. ठीक है, हाँ आप एक गणेश जी की सॉलिड हम्म, गणेश जी जो मूर्ति होती है ना, हॉलो नहीं होनी चाहिए, हाँ उसको अपने उस एग्जीबिशन टेबल पे रखें और ओके एक इंडिया का झंडा लगा दें छोटा सा. ठीक है, आपकी ओके सेल अच्छी हो जाएगी. ओके आपको सोचना नहीं है हाँ कि मेरी सेल होगी या नहीं होगी. ठीक है, ओके हाँ अगर आप सोचेंगी तो आपको कुछ नहीं होगा, निराशा ओके हाथ लगेगी. यू डोंट ओके हैव टू थिंक. और जैसे मैडम ने बोला है हम्म, कि आप बीज मंत्र कर सकते हैं शुक्र का, हाँ ओम द्राम द्रीम द्राम से शुक्राय नमः. ठीक है, ओके इसका सर, बीज मंत्र कर लीजिए और जाइए, आपकी सेल होगी. बट यू डोंट हैव टू थिंक. और जहां ओके तक आपका हाँ ये रिलेशनशिप इश्यूज का है, हाँ स्पेस दे दीजिए अपने हस्बैंड को. 43 अच्छा. दिन में आपके चरणों में आ जाएंगे, आप स्पेस नहीं देती हैं. ठीक है, ओह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और वो कुसुम जी आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी मिल गई, तो अब तो आपको वैसे भी चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि हाँ आज दीपक जी शेयर कि आपको केतु इज समथिंग, यू नो, व्हिच यू एक्चुअली यू नीड टू डिटैच फ्रॉम समथिंग, जो जो आपका अट्रैक्शन बन गया लाइफ में, उससे डिटैच करना है अपने को. तो आपका दिमाग बार बार उधर जा रहा है, तो आप वो हटा. जो सर ने बताया, तो मैं आपको समराइज अप कर देती हूँ सारी रेमेडीज. आप कल हाँ एग्जीबिशन पे जाएंगे, आप हाँ मॉर्निंग में अपना शुक्र का मंत्र चैंट करेंगे, यू विल ड्रेस अप वेल एंड यू विल गो विद द माइंडसेट कि आपको चिंता नहीं करनी है, कि आपका डे अच्छा ही जाएगा. आपको चिंता नहीं करनी कि मेरे को इतना ही आज अर्न करना है इस एग्जीबिशन से, या इतने ही ओके मेरे क्लाइंट्स आ जाएं. आपको केयर फ्री हो जाना है उस थॉट के साथ. एंड ओके अपना एक कोई फ्लैग ले जाइएगा वहां पर, जैसे जो वहां पे आप अपने जो आपका डेस्क होगा या जो टेबल होगा, और कोई भी हाँ गणेश जी की, चाहे वो क्ले की भी मूर्ति हो या कोई भी, अंदर से खाली नहीं होनी चाहिए. पूरी बनी हुई मूर्ति जो हैवी होती है, उसको आप ओके छोटे से गणेश जी में प्लेस कर दें. ठीक ठीक है, है. थैंक यू. हाँ ठीक है. कल वैसे भी शनिवार है, हाँ तो शनि और शुक्र मिश्रित भरा शुक्र होता है ये. ठीक है, ओके मिश्रित हाँ भरा शुक्र होता है केतु. ओके तो इसलिए आप यही करिएगा. और स्पेस, आप क्या कहती हैं अपने हस्बैंड को कि वो आपको अटेंशन नहीं देते? ठीक है, आपकी प्रॉब्लम ये है. ठीक हाँ है, ओके, तो छोड़ लो, जाने दो. ओके दूसरा 45 दिन में पर्सपेक्टिव आपके जो चरणों में आ आई जाएंगे. इंटरप्ट हियर, मैं एक चीज और भी बोलना चाह रही हूँ जस्ट टू ऐड ऑन. वो ये है कुसुम जी कि जैसे सर ने बोला कि वो आप बोलते हो कि अटेंशन नहीं देते, वो ये भी हो सकता है क्योंकि कार्ड्स में भी जैसे था, जैसे मैंने बोला सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है ना, तो उसकी हाँ वजह से आपका जो एक्सपेक्टेशन उनसे अलग होता है और उनका एक्सपेक्टेशन आपसे अलग होता है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट सर इज सेइंग एंड व्हाट आई एम सेइंग. सो उसकी वजह से है, बट इट इज टेम्परेरी, सो इट इज जस्ट अ फेज. इट विल बी फाइन सून, तो आप उसकी टेंशन मत करिए. ओके मैम, ओके मैम. मैम और एक लास्ट लास्ट लाइन, आई हैव हेल्थ इश्यूज. मैम मेरा ना मैम मेनोपॉज. वो मेरा हीर जी का क्वेश्चन भी क्वेश्चन है. अच्छा, आपके हेल्थ इश्यू से स्पेसिफिकली क्या पूछना है आपने? मैं एक ही कार्ड निकालू. मेरा रिपोर्ट सब करवा दिया है, ऑल कैंसर टेस्ट कराया, सब करवाया है, और एक यूरिन कल्चरल कराया, सिस्ट बोला है. तो वो आगे कुछ बड़ा इश्यू है या नहीं है? बिकॉज आई मैन प्री एजिंग मेनोपॉज हो गया मेरा 33 में. तो रिपोर्ट मंडे आएगी वो. तो ओवरऑल हेल्थ इश्यूज कैसा रहेगा?
एक बार आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेना, जैसे टेक्स्ट पे ही चाहे पूछ लेना, मंडे को रिपोर्ट्स आने दो, क्योंकि हाँ। इसमें ना जो कार्ड्स हैं उसके हिसाब से भी ओवर थिंकिंग ज्यादा दिख रही है, तो मैं अगर रीडिंग दूं भी इस हिसाब से तो कुछ प्रिसाइज शायद ना भी आए। तो ठीक। ओवर थिंकिंग इन द सेंस जैसे होता है ना कि जैसे लेट्स गेट द फैक्ट्स करेक्ट, उसके हाँ। बाद मैं आपको टेक्स्ट पे बता दूंगी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑलवेज, ठीक ओके है? देन मैम। तो मैं आपको एंड तब मैम बता दूंगी कि वो उसके हिसाब से कैसा आएगा, ठीक ठीक है, थैंक यू है? मैम। ऑल द और बेस्ट, मैं ऑल द पर्सनली बेस्ट। पूछ सकती हूँ आपको कि टैरो कार्ड का चार्जेस क्या है, कैसे, हाउ टू ज्वाइन? अभी मैं शेयर करा, आप ग्रुप पे एडेड है हमारे? हाँ, अरे मैम। ओके ठीक है, शील शेयर इट ऑन द, स्वाति विल डू द नीडफुल। मैम अभी We'll get शेयर it. कर हाँ, देते हैं। हीर का भी क्वेश्चन है स्वाति, या तो आप शेयर कर लो Yes. फिर ले लेंगे। आप या मैम वरी हम ले लेंगे आपका क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो, ठीक है? Okay. तो yours Ma'am, will be the last one probably. तो आप स्वाति जी प्लीज Ma'am. कर दीजिए शेयर एक बार, उसके बाद हम इनका ले लेंगे क्वेश्चन। ओके मैम। Ma'am, thank you so much for the wonderful session, and thank you even more for taking my question. God bless you for this. Ma'am, my question is, actually I've been an HR manager for the past 17 years. I've been working, but abhi like 6 to 8 months ago, I just left work because my daughter wanted to go to university. So I wanted to just give up things to give her time and settle her down first. So now she's going into college, she's getting into university, and I have been learning tarot and gotten occult science since over a year. So now my question is, like, I don't want to go back to work, what I was doing before into HR. I don't know, I should put my hand into, like, get deeper into occult and make that as a profession, like tarot reading. I just done the basic, I might go into advanced, or I have my dad's share business, which mom wants me to take over, or I have, like, knowledge of French, like French teaching skills. So which of that should I do? Which would work better for me? First of all, I would like to, share that you and me have a lot of similarities. Reason being that wow. I am an MBA in HR and I was Wow. into corporates and I just quit, all that. And then I got into, Oh, this. So first similarity okay. is that I did my That, BCom okay. honors from a very reputed college, Hansraj College, you must be aware of DU. And then I That's did great. my HR MBA also. And I was into corporates for like more than a decade and all that. But Oh, I wow. Okay. so this similarity, as I already mentioned, and the second one is like, French, I know French, so Wow. I know Spanish also, so that is Excellent. something, yeah. So yeah, that is very very quite close. I can relate to that. And जैसे आपने अभी बोला कि आप वापस नहीं जाना चाहते हो उस चीज में, ये सिमिलैरिटी भी है मेरे और आपके बीच में, बिकॉज मेरे साथ Right. यही था. I never wanted to go back to that same stressful stuff, honestly Correct. speaking. Correct. So, in a way, it was a very difficult transition period for me to get into Right. something which is new. But I am really, really blessed that way, or I'm grateful to God because I could explore this way, this particular way of Feel. life, मेरा way of life ही बदल गया. So I'm really, really grateful to God. और वो मतलब मुझे नहीं पता कि वो financially पहले अच्छा था या अब struggle है definitely with me also, but then of course वो सारी चीजें for good बहुत बदल गई हैं, जो बहुत अच्छा भी है. So now coming Correct. back to your question. Yes, ma'am. So your question is that you either want to do this field of science or Yes. you want to pursue what your mom says. Yeah, like, shares trading. My dad was doing, he passed away, so like mom is handling, she wants me to take charge of that. Share trading will be good. Really? Okay. वो Okay, अच्छा good to know. रहेगा, बट आप दोनों भी कर सकते हो, पता है, क्योंकि Fine. जैसे ये Yes. मैंने आपको क्यों बोला है, उसका रीजन ये है कि दैट जैसे इट्स देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू डू सर्टेन थिंग्स. तो आपने Correct. आप जैसे बोला कि अब शेयर वाला चीज आपके माइंड में आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज अ न्यू फील्ड फॉर यू राइट नाउ, इन द सेंस ऑफ कोर्स आपको आइडिया होगा बिकॉज योर डैड वाज इनटू इट, सो यू कीप hearing and knowing about Correct. that stuff. बट ये होता है कि आपको उसको थोड़ा सा अलाइन करना होता है ना अपने आप को भी with something new. Yes. So I You're think right. this particular thing which you will learn, I mean, it can be tarot, it can be astrology, wherever your interest lies. So then that thing will help you to align yourself.
You'll be able to, you know, Okay. grab that opportunity like fish to water, something like that. Okay. Okay. So Okay. mutual combination of both will help you. Thank you. Thank you so much for that. I Thank was you. hoping for this. Thank you. and Thank all you, the ma'am. best. Yeah. चलिए मैम, मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ। हाँ, आप प्लीज। 5वें घर की इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट होती है। 8वां घर ऑकल्ट होता है। फाइनेंस के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, 5-8 एक कॉम्बिनेशन होता है वेर यू लूज मनी। ओके, Okay, correct. so 4 and 8th houses research. So before you get into the stock market, you do the Okay. research of stocks and just Okay. not blindly just go into. Okay, Okay, sir. क्योंकि Thank you. 8वां घर दूसरे व्यक्ति का पैसा, आपका पैसा नहीं है वो। Right. 5-8 दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति, आपकी नहीं है। So Okay. ultimately it'll go to somebody else money. If you are utilizing the 5 and 8, then the money Okay. will come to you. So utilize your 8th house, Okay. whether it is through a research or it is through occult, Okay. or it is some Okay. kind of manufacturing or anything, whatever you want to do. So Okay, utilize it, then only step into the stock market, as ma'am has Okay. said. Thank you so Okay. much. Thank you. I'll be cautious. That will really Yeah. help your advice and ma'am's advice. Utilize your 8th and 5th, नहीं तो पैसा चला जाएगा, आएगा नहीं। Right, sir. No, I'll be cautious as you have advised. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Okay, God bless. please take up Ashwini ji's question अगर Thank you, possible ma'am. हो तो. You're most welcome. Thank you. Thank you, And ma'am. अश्विनी जी का रेज भी है, उन्होंने मैसेज भी किया है, मैम मेरा भी सवाल था, तो अगर एक बार पूछना चाहें तो प्लीज अश्विनी जी पूछ लीजिए। सो मे बी दिस इज द शाश्वत जी को ही कुछ पूछना है, हैंड रेज देख रही हूँ मैं। यस मैम। ये 2 लोग ही रह गए, स्वाति पूछ लेते हैं एक बार ना, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू बी लेफ्ट बिहाइंड। यस मैम, अश्विन जी आप अनम्यूट ही हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी चांस। ओके, हाँ जी बोलिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैम जब आप टैरो स्प्रेड करते हैं तो मैंने किसी को देखा है कि वो स्प्रेड करते हैं तो कोई रैंडमली कार्ड चूज कर लेते हैं, किसी को देखा है कि लोग कार्ड्स को प्रेस करते हैं, हैंड प्रेस करते हैं, उसके बाद कोई कार्ड निकालते हैं। मैम क्या तरीका होता है? देखिए, इसमें जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ और मुझे जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, इसमें कोई तरीका अप्रोप्रिएट तरीका नहीं होता है। इसका कोई एक होता है ना रिजिड रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो अगर हमें स्प्रेड करना है तो मैं स्प्रेड पूरा भी स्प्रेड कर सकती हूँ, मुझे स्प्रेड करना है तो मैं जैसे होता है ना, जैसे हम उसको शफल करते हैं कार्ड्स को, और मैं उसको थोड़ा डेक में से निकाल के सेपरेट करूंगी, मैं थोड़ा और सेपरेट करूंगी, और मैं कोई नंबर, सपोज शाश्वत जी ने कोई नंबर बोला, मतलब बर्थडे है, मैंने बर्थडे का नंबर आपका ले लिया, आपने बोला मेरा बर्थडे इस दिन आता है, तो मैंने वो नंबर पिक कर लिया, मेरा मन है मैंने उस हिसाब से उतने ही कार्ड्स या उतने नंबर पे जो कार्ड है वो खोला। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक ही रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है वो ये है कि आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। मुझे शाश्वत जी का क्वेश्चन का आंसर देना है, उनको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने क्वेश्चन की, ये मेरा इंटेंशन होगा तो कार्ड्स भी सही जवाब देंगे। आप लोग क्वेश्चन मन में रिपीट करते हैं चीज? हाँ जी, ऐसा मैंने किसी को देखा है। क्या मैम किसी टैरो कार्ड रीडर को मैंने, मतलब कुछ टैरो कार्ड रीडर्स क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस जो क्लाइंट ने पूछे हैं उसको रिपीट करते हैं अपने मन में, जैसे लगता है कि ऐसे वही कुछ लोग खुद बोल रहे हैं। कुछ फिर rigid कार्ड नहीं शाश्वत जी, अगर ऐसा कोई करता है वो उसका अपना स्टाइल है, वो हम अपने आप सीख जाते हैं, इसमें से कुछ फिक्स रूल नहीं है। ओके मैम। मैंने बोला सिर्फ एक रूल है, जो टैरो कार्ड की रीडिंग अगर सही आएगी ना, वो तभी सही आएगी जब उसका इंटेंशन प्योर होगा। उसका इंटेंशन होगा कि मुझे सामने वाले को उसके क्वेश्चन का एक क्लैरिटी देनी है, सिर्फ वो इंटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है सच, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। आपका कोर्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे? हाँ जी, हमारे कोर्स में सर्टिफिकेट मैंने अनाउंस किया था ये पहले, रिकॉर्डेड आपको सारा कुछ मिलता है, पीपीटीज मिलती हैं और सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके बाद भी जब कोर्स खत्म हो जाता है, अगर आपको कभी भी डाउट आता है, आप टेक्स्ट के थ्रू कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आपका या मेरा दोनों का बिजी हो सकता है शेड्यूल, तो हम अपने स्टूडेंट्स को एक हमेशा का कनेक्ट हो जाता है, वो कभी भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है।
थैंक यू मैम। Okay, all the best. अश्विनी जी का भी ले Thank you, लेते हैं. ma'am. She is the final one now. हाँ हाँ पूछना था मैंने रीडिंग अश्विनी जी आप करना चाहिए अपना गवर्नमेंट। वीडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है. ओके मैम मुझे पूछना था मैंने बोलिए. एज अ टैरो कार्ड एज अ प्रोफेशन यूज करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए अभी आप देखना जॉब चाहिए? कर रहे हो? अभी आप नहीं जॉब मैम कर फिलहाल रहे नहीं हो? कर रही। सॉरी, नहीं मैम फिलहाल नहीं कर रही। नहीं कर रहे. नहीं कर रही हूँ फिलहाल। ओके ओके. आपका मन क्या कह रहा है? मैम मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज है. कि बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए, बट मैं और कार्ड्स ड्रॉ कर रही हूँ. लेट मी सी. आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसकी बात आप समझ आती है, आपको डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प करता है, जिसकी बात नहीं आपको मैम। लगता है कि उनकी सजेशन आप वो देंगे तो आप समझ पाएंगे, ऐसा कोई है? नहीं मैम ऐसा कोई नहीं, सब अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। तो आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट है? हाँ मैम। एक्चुअली फिर ना यही फील ज्यादा मुझे लग रहा है दोनों में से. एक्चुअली यही लग रहा है कि आपको ऑकल्ट वाला ही, गवर्नमेंट जॉब वाला इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है एट प्रेजेंट. ओके एट प्रेजेंट लग रहा है मुझे ऐसा, इन सीइंग योर कार्ड्स. थोड़ा सा मुश्किल ये होगा कि जैसे अगर आप सपोज ऑकल्ट की फील्ड में आते हैं तो थोड़ा एक होता है ना, स्टेबिलिटी शुरू में नहीं हो पाती है, थोड़ा चैलेंज रहेगा या जो भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत जुटानी पड़ेगी. कि अभी आप सोचोगे तो ये लगेगा कि मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट यू शुड हैव स्ट्रेंथ. वो ठीक ही रहेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला ऑप्शन से बेटर रहेगा ये, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स. ओके 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 और मैम मुझे मेरी शादी के बारे में पूछना है। ओके, पूछिए. कब तक होंगी, लव मैरिज होंगी या अरेंज मैरिज? आपका बर्थडे कब आता है? 73991। 7/3/1991. शादी देखो, अगर आप इस साल में करते हो ना, तो अभी जो एट प्रेजेंट आपका सिचुएशन देख के मैरिज के बारे में जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपको सिर्फ वही लगता है कि मतलब इमोशनली बैकअप के लिए, जैसे कह सकते हो ना कि एक होता है कि एक इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, ये आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा लग रहा है. राइट मैम। ऐसा है? यस ओके. तो अगर आप इस टाइम पे शादी करोगे ना, तो उतना मतलब इस टाइम मीन्स अगर इस साल में कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो आपको वो ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए. उसका रीजन है कि वो सिर्फ उस थोड़े से कंफर्ट या उस थोड़े से सपोर्ट के लिए ही है. वो उसका रीजन उतना ही है. मतलब वो एक होता है ना डीप डाउन इनसाइड के, एक शादी के पर्पस से जो हम कहते हैं बड़ा उसका जो रीजन होता है, वो पर्पस उसका खत्म हो जाएगा. उसका सिर्फ रीजन ही हो जाएगा, कोई है नहीं आज बात करने के लिए, आज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ तो आज मेरे को कोई मिलना चाहिए बात करने के लिए. सिर्फ एक्सक्लूसिव इस टाइम पे यही आपके मन में चल रही है जरूरत. तो इस साल में शादी अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, इस साल में मत करना. ठीक है? ओके ओके और मैम। बाकी हाँ, कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है जो आपने अपनी फैमिली से छुपाया हुआ है? नहीं मैम अभी फिलहाल कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है. पहले था कोई? मतलब आज अब हाँ से था पहले? लेकिन अभी मतलब मैं हाँ जी, नहीं है अभी कुछ। पहले था? अभी कुछ भी नहीं है मैम, पास्ट में था। हाँ हाँ लास्ट में था ना? हाँ, वही मेरे को लग रहा था. लेकिन वो घर पे पता था। घर पे पता था. तो
तो अब मेरे से एक बार और स्पेसिफिकली पूछिए, क्योंकि स्पेसिफिक से थोड़ा और रीडिंग और बेटर हो जाती है। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि शादी मैंने जैसे बताया इस साल में तो नहीं करनी, आप ये पूछना चाह रहे हो कि कब होगी? हाँ, कब होगी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? आपका मन क्या सोच रहा है कि आपको क्या लगता है, लव मैरिज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी? मैम एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका है 3 साल पहले, तो उसके बाद तो ऐसा लगता ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो मुझे लगता है उसके हिसाब से मैंने चलना चाहिए, जैसा मिलेगा एक्चुअली उस रूल यही पे। आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं, जो सिचुएशन जैसे बनेगी ना, मतलब आपको लव मैरिज के लिए अगर कोई इस तरह से सिचुएशन बनती है तो आप वो भी कर सकते हो, और आपको अगर कोई फैमिली की तरफ से भी मतलब अप्रोच करता है तो आप वो भी कर सकते हो। बट उसके पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने अभी बताया, क्योंकि जैसे डिवोर्स वाला चीज बताया है, तो आप एक बार जस्ट सिट डाउन एंड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, इन द सेंस जो पहले वाले एक रोज नहीं करना है ऑब्वियसली। अगर सपोज आपको आज अपने लिए शादी का माइंडसेट बनाने के लिए आपने आज सोचा है कि मेरे को आई एम ओके रेडी टू गेट मैरिड, मे बी आप किसी भी दिन बैठो और थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, 1 दिन 2 दिन, कि क्या गलतियां हुई क्या नहीं। बिकॉज अगर जैसे हम गो विद द फ्लो को जब इसके साथ रिलेट करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जब आगे कोई आपके पास शादी का प्रपोजल आता है थ्रू योर फैमिली और somebody यू मीट, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स एक सोल्यूशन या डिसाइड करने में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो अपने इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, जैसे अपने ही बारे में हम थोड़ा सोच के कि पहले क्या रहा था और क्या नहीं, थोड़ा सा एक इवैल्यूएशन करने की जरूरत है। ओके मैम, मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे मतलब प्रपोजल तो आते हैं लेकिन ऐसा ट्रस्ट नहीं रहता, मतलब कोई नहीं नहीं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं रहता, नहीं कोई नहीं आप कमिटमेंट के लिए रेडी रहता। नहीं आप अपने माइंड, जैसे आपके जो ये थॉट्स भी आ रहे हैं ना, वो इसीलिए आ रहे हैं कि आपको एक बार जस्ट सिट डाउन एंड रीथिंक अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट प्रोबेबली यू वांटेड इन फ्यूचर। एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। एक होता है ना अपना सेल्फ एनालिसिस, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट को लेके, थोड़ा सा उस पर कुछ दिन वर्क करो। जरूरी नहीं है कि एक होमवर्क की तरह रोज नहीं है, बट whenever you get time maybe give some few days और अ मंथ टू दैट, आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। और उससे ना जो रिजिडिटी आ रही है आपकी, बहुत रिजिड हो रहे हो आपके अभी मेरा माइंड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक डिफिकल्ट फेज से बाहर आए हो तो आपके लिए मुश्किल है एक नए रिलेशनशिप में जाना, तो आपको ये चीज से भी बाहर आने में वो हेल्प करेगा। ओके ओके मैम, जैसे आपने बताया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं ट्राई करना चाहिए, तो मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि पुणे में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लूँ और साइड बाय साइड टैरो कार्ड का जैसे सीख के वो भी कर लूँ, तो वो बेटर आप रहेगा दोनों क्या? कर सकते हो, वो दोनों कर सकते हो। आपने मुझे स्पेसिफिकली दोनों में से चूज करने के लिए बोला था ना, तो मैंने उसके हिसाब से आपको ये कहा था कि वो बेटर है, बट आप दोनों भी कर सकते हो। बहुत दोनों का भी बिल्कुल क्लियर उसमें आ रहा था, यू कैन इजीली बैलेंस दोनों, ठीक है। एंड दैट विल बी अ गुड बिगिनिंग फॉर यू, अच्छा रहेगा दोनों ही चीजें अगर होती हैं तो, ठीक है। हाँ मैम, क्योंकि टैरो कार्ड तो सीखना ही है, लेकिन उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए ना, तो फिर अगर प्राइवेट नहीं सेक्टर वो में आप जॉब कर लूँ दोनों, तो वो भी नहीं अश्विनी जी, वो दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि प्राइमरीली कार्ड में मैं ये पहले कहने भी वाली थी आपको दोनों कर लो, बट आपने मुझसे स्पेसिफिक पूछा था तो मुझे लगा कि मैंने प्रेफरेंस बताई थी कि दिस इज प्रेफर्ड ओवर दैट। तो अगर आप दोनों भी करोगे ना तो आप इसी में ज्यादा एक्सेल करोगे, या इससे ही आपको सेटिस्फैक्शन, मॉनेटरी में भी अगर दोनों एक लेवल पे होंगे तो ऑकल्ट वाली फील्ड से आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी, तो मींस बेनिफिट ज्यादा यहाँ हो गया ना, थोड़ा सा 2 प्लस पॉइंट यहाँ ज्यादा हो गए, तो दोनों आप कर सकते हो, उसकी चिंता मत करें, ठीक है। ओके 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 मैम, मुझे एक सिर्फ लास्ट सवाल है, मेरे पापा के बारे में पूछना था। मेरे पापा को बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे श्री स्वामी समर्थक केंद्र के जो प्रोडक्ट रहते हैं, तो वो करना चाहिए क्या स्टार्ट? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ना आपका क्वेश्चन, हाँ। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा उनके लिए।
ओके, क्योंकि फाइनेंस बहुत डाउन हो चुका है मैम। मतलब मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है 2 साल पहले, और मेरा डिवोर्स का भी हुआ, तो इसकी वजह से सब कुछ मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल चल रहा है। इस पर्टिकुलर चीज के अलावा कुछ हो तो मुझे लगता है बेटर होगा, बिकॉज ये है कि जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा और जो कार्ड्स है उसमें थोड़ा स्ट्रेस इन्वॉल्व लग रहा है। ओके, तो मैम अभी कैसे, पहले हमने होटल का किया था, लेकिन उसमें कुछ होटल बार का किया था, तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, वो स्टॉप कर दिया। फिर अभी ये जो प्रोडक्ट है, मतलब स्वामी समर्थ केंद्र की भगवान के सब चीजें जो रिचुअल्स के रहते हैं ना, वो चीजों को शॉप डालने का ओके सोच रहे हैं। ओके 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 ओके, जैसे जो मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें होती हाँ है। हाँ, पूजा पाठ रिलेटेड सब। त्र्यंबकेश्वर में है ये गुरुपीठ, वहां से सब प्रोडक्ट आते हैं। देखो अगर इसको हम ऐसे एनालाइज करें, मैंने 1-2 कार्ड और भी ड्रॉ करे हैं, उसके हिसाब से ही लग रहा है कि जैसे आपने फाइनेंशियल स्टक होने की बात करी, उसमें ये वाला जो जॉब या जो ये काम है वो उनको ऑब्वियसली हेल्प करेगा, बिकॉज वो थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें दिख रहा है, सीइंग यू नो ऑल दीज कार्ड्स, इसमें एक हेरोफेंट का भी कार्ड होता है, तो कहीं वो स्पिरिचुअलिटी दिखा रहा है। तो एक स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला, हो सकता है इनिशियली, क्योंकि अभी जैसे आपके डैड कुछ नहीं काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम किसी बिजनेस या किसी जॉब में जाते हैं तो थोड़ा स्ट्रेसफुल ज्यादा हो जाता है। तो वो स्ट्रेस जो थोड़ा बहुत आएगा, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ दैट। तो वो ये पर्टिकुलर स्पिरिचुअल वाला काम कर सकते हैं। ओके ओके, जैसे आपने बोला ना फाइनेंशियल और वो सब बेटर हो जाएगा, बट थोड़ा फेज में स्ट्रेसफुल आएगा। तो मैं पहले से, अगर जैसे आपको पता होता है, तो हम कहते हैं ना कि हम थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो कुछ करेंगे तो थोड़ा लाइफ तो चेंज होगी ना। सो इट इज पार्ट ऑफ इट, तो आप उसको वही मान लो कि इट इज पार्ट ऑफ इट। तो उसकी वजह से अगर आप इसको आगे लेके बढ़ते हैं, सो इट विल गुड, यू नो, इट विल बी एक्चुअली वर्क फॉर यू, तो वो कर सकते हैं। ओके ओके मैम, तो ओके मैम, थैंक यू सो मच। सो या थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड स्वाति जी अब अभी है ना? हाँ जी मैम। हाँ, सो अभी सबके हो गए हैं, थैंकफुली सबके क्वेश्चंस हो गए हैं आज। सो हम क्लोज करते हैं अभी। एंड हु ऑल आर इंटरेस्टेड, जो अभी रह गए हैं और जो बाद में, यू विल शेयर यू नो एवरी डिटेल्स अबाउट द कोर्स इफ दे आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। एंड ठीक है, तो हम वही करते हैं। ऑलराइट, यू एंड आई एक्चुअली वांट टू थैंक एवरीवन हु इज अभी तक, हु इज प्रेजेंट, स्पेशली दोज, एंड ऑफ कोर्स जो पहले थे उनको मैं थैंक्स बोल रही हूँ, बट वो सुन नहीं पा रहे क्योंकि वो यहाँ है नहीं। तो आप सबको यू नो फ्रॉम माय यू नो हार्टिएस्ट थैंकफुल आई एम, बिकॉज यू आर स्टिल अभी तक, इतनी देर तक आप रुके हुए हैं इस वेबिनार में। ऑलराइट, so all the best to all of you, and may God bless you all, and may you have you know all your worries going and happiness coming into your life. All right, good night. Thank you. Swati, आपको कुछ कहना है क्लोजिंग में? या मैम, अगर Thank you so much, ma'am. You're most welcome, Kusum ji. All the best for your tomorrows and day afters, you know, exhibitions. Thank you much indeed, your blessings. So we can close, Swati ji, now? Yes, ma'am. Okay, thank you for your support also. You were also there, you know, you are inclusive in that thankful note. So thank you so much. All right, good night, everyone. Good night.